Hello students, dear students, today I am going to start the new chapter of science. The name of chapter is soil here. Okay. Dear students, you all know about the soil because everything in our life are related to the soil. Okay. You can say soil is an inseparable part of our life. Okay, we can't separate the soil from our life because it provides the you can say directly or indirectly shelter, food, clothes to the livings. Okay, हम लोगों को जो भी मिलते हैं बिकॉज एग्रीकल्चर स्टार्ट फ्रॉम द सॉइल ओनली. ओके, एंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर वी गेट द शेल्टर, we get the food, we get the clothing also, everything we get from the you can say the soil. And many living organisms like microorganisms are there, worms, insects and many things which are live in the soil. They are survive in the soil, so they provide the shelter for the living animals. Okay, living you can say living things, say living beings. And after that you can say that soil it's a for the livings and non-livings you can say it's very useful for all of them because in the soil the small animals they get the food from there, and plants take the nutrients from the soil and they can grow. When the plants will grow, we get the things from the plants which we need in our life. उनसे हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो किससे मिलती है? हमें सब सोयल से ही मिलती हैं. तो एक तरह से अगर हम सोयल को डिफाइन करना चाहें तो हाउ वी कैन डिफाइन, वी कैन से that a soil is an inseparable part of our life which provide directly or indirectly provide us food, shelter and you can say clothing. So you can define in your own words. ये अपने words में तुम कह सकते हो to prove your test or your definition. You can see the magnifying picture of the soil. Okay, you can collect the soil from anywhere else and put in a glass tumbler and you can try to see inside the soil particle what it contains. इसके अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश कर सकते हैं. इसके अलावा हम उसको पानी में मिक्स करके फिर हम देख सकते हैं कि सोयल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. कुछ ऊपर तैर के आ जाती है, कुछ उसके बॉटम में जाके बैठ जाती है. तो इस तरह से हम अपने सोयल की टेस्ट कर सकते हैं जिससे अपने को पता चलता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ओके, इसके अलावा क्या कह सकते हैं, अगर सोयल को डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं सोयल इज द स्मॉलेस्ट contain the smallest rocky particles and humus in it. इसके अंदर the dead and decaying or rotten particles of plants and animals remains ना are mixes into the rock particles and they mix together and convert into fine particles that is known as the soil. वो क्या कहलाती है? soil कहलाती है. फिर अपन उसको क्या कह देते हैं? soil कह देते हैं. So this is about the definition of soil, जिसमें अपन कह सकते हैं कि the soil is a classified you can say mixture of the rock particles and humus is called the soil. Okay, so this is about the definition. Soil is the mixture of rock particles and humus. You know the humus? In another chapter you have studied about the humus also, is called soil. Humus क्या होता है देखो मैं बताती हूँ तुम्हें. The remains of plants and animals. Plants और animals, plant leaves वगैरह जो होती हैं ना, जो small branches वगैरह वो टूट के गिर जाती हैं वो सारी, तो जब वो नीचे गिर जाती हैं तो what happen? The microorganism जो होते हैं नेचर के अंदर, they convert them into smallest pieces. Okay, है ना, वो किस में कन्वर्ट करते हैं? smallest pieces में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है. ऐसे ही एनिमल्स रिमेन्स जो होते हैं, एनिमल्स रिमेन्स समटाइम्स many type of animals like you can say the smallest animals, the insects, worms etc. are when they die they are mixed into the soil and they convert into that blackish part. So you can say the remains of plants and animals का जो remains है जो black color का होता है सड़ गल के smallest pieces में, by the action of microorganism works on it and it degrade it into smallest pieces. उसको छोटे छोटे particle में convert कर देता है. That
smallest particle is known as the humus, and that humus is very useful for the further growth of the plants. Okay, plants की फिर growth होने के लिए तो they make the soil fertile. ये soil को क्या बनाते हैं, fertile बनाते हैं. तो ये क्या कहलाती है, humus. तो अपन कह सकते हैं humus is a black humus is found in the topmost soil. It is a remains of plants and animals, and which provide the nutrients to the growing plants. Growing plants को ये nutrients provide करते हैं. तो ये हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमस अपने आप में क्या होता है. अब इसके बाद हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं इसमें यू हैव गिवन द सोइल प्रोफाइल ऑल्सो. ओके, तो what we can see in the soil profile, we can see the different layer of the soil in sequence from the top to bottom is known as the soil profile. जब अपन क्या करते हैं, अपन soil की different layers को क्या करें, उनको अपन क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप स्टडी करते हैं, है ना. ये जो लेयर्स हैं मैं बना दूं, मान लो ये मैंने जो अपर लेयर बना दी है, इसमें क्या ग्रो कर रहे हैं, ये प्लांट्स हैं, इसमें अपर लेयर में ये उगे हुए हैं. गॉट इट. ओके, एंड दिस इज अ लेयर. द अपर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर जो बोली जाएगी, इसको नाम दिया गया है ए ओरिजन. डिफरेंट होरिजन में, डिफरेंट लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है. तो वो क्या कहलाती है, सोयल प्रोफाइल. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोयल पार्टिकल इनटू डिफरेंट लेयर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज द सोयल प्रोफाइल. उसको अपन क्या बोलेंगे, सोयल प्रोफाइल बोलेंगे. सी the uppermost layer, what it contain, it contain the remains of plants and animals. You can say humus inside it. इसके अंदर humus होता है. मैं इसके एक एक की जो प्रॉपर्टी है भी बता देती हूँ. ह्यूमस होता है तो ये इसके अंदर ये ज़्यादा फर्टाइल हो गई, एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट सो मच टाइटली पैक्ड. इट इज एरिएटेड पार्ट मीन्स यू दे पार्टिकल्स हैव द स्मॉल स्पेस बिटवीन देम. बिकॉज ऑफ दैट the plants can trap the air and they can breathe easily and they can absorb the water also. तो ये इसे प्लांट रूट्स के लिए क्या रहती है, हेल्पफुल. तो इस लेयर में प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं. तो इस लेयर को अपन बोलते हैं ए होरिजन. ठीक है. आफ्टर दैट सेकेंड विल बी बी होरिजन. ऑब्वियसली इन दिस होरिजन द पार्टिकल्स आर, दे फील सम प्रेशर. उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, तो ऑब्वियसली दीज पार्टिकल्स हैव लिटिल बिट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. तो सो वी कैन से दे आर टाइटली पैक्ड इन द एज रिलेटिव टू द ए ओरिजन. ए ओरिजन की कंपेयर में क्या होंगे, पार्टिकल्स थोड़े से टाइटली पैक्ड होंगे, मतलब इतना ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं होगा. तो इस ये क्या करती है, ये वाला जो पार्ट होता है बी ओरिजन, इसके अंदर ह्यूमस तो कम होता है, but it contains the minerals because it contains some rock particles also inside it. So it have the minerals inside this layer. इस layer के अंदर हमें क्या मिल जाएंगे, minerals मिल जाते हैं. तो ये कहलाती है B origin. Okay. After that if you want to see, इसमें particles भी मिल जाएंगे और little bit water भी मिलेगा और बाकी सारे minerals मिल जाएंगे. अब C origin जो है that is the another compressed part of the soil. ये और ज़्यादा compressed part है, इसके नीचे particles दबे हुए हैं, means they are more tightly packed than the A and B. Obviously B. Okay, A से तो है, A से B है, और B से कौन सा tightly packed है ज़्यादा, फिर ये C हो जाएगा. तो अपन क्या कह सकते हैं, they all are so much tightly packed and they do not have space between the particle. They do not trap the air inside it. ज़्यादा air भी trap नहीं कर सकते एज पार्टिकल. तो इसके अंदर इट हैव द लम्प्स ऑफ द रॉक पार्टिकल. इसके अंदर रॉक पार्टिकल जो है थोड़े बड़े बड़े होते हैं ना, एंड इट कंटेन सम मिनरल्स. इसमें कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे, रॉक पार्टिकल्स हैं तो मिनरल्स मिलेंगे. इसके अंदर ह्यूमस का तो कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है. तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है थर्ड पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी ओरिजिन बोलते हैं. और इसमें क्या रहता है, स्मॉल क्रैक्स रहते हैं. तो लिटिल क्रैक से भी सीप्स अप होके पानी धीरे 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 मान लो नीचे तक पहुंचता है लंबे टाइम में. तो वो लिटिल बिट क्रैक्स इन रॉक पार्टिकल में मिल जाते हैं. और सबसे लास्ट में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं बेड रॉक्स. मीन्स ऑल द पार्टिकल्स आर, ऑल द पार्ट ऑफ दिस ओरिजन मेड अप ऑफ रॉक्स. इसमें बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जो लेटी भी रहती हैं लाइक अ बेड. तो सो दे आर नोन एज द बेड रॉक्स. गॉट इट.
So these are the origin, or you can say, of the layer of the soil, or these different type of layer of soil is known as the soil profile. इसको क्या बोलेंगे अपन? Soil profile. Okay, for the soil profile, what you can see, take a glass tumbler at your home. घर पे अपना हो एक्टिविटी इजीली कर सकते हो. एक ग्लास टम्बलर लेना और डिफरेंट जगह से, घर के अंदर ही आप अपना अपना गार्डन है वहाँ से, घर के पीछे से, घर के साइड में से, और क्या करो, मिट्टी कलेक्ट कर लो 4-5 सैंपल्स and put in a glass tumbler and fill it with the water, stir it well and left it undisturbed for a considerable time. And after some time you can see different layer of the soil. You can see that you can say layering of the soil, that is known as the soil profile. soil profile को चेक करने के लिए ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं. उसमें आप चेक करके देखना कि अपर पार्ट में क्या है. ऑब्वियसली अपर पार्ट में क्या होगा, कुछ तो डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स जो होंगे, कुछ लाइट पार्टिकल जो वाटर से भी लाइट होंगे, वो तो ऊपर फ्लोट करते हुए हमें सरफेस के ऊपर मिल जाएंगे. इसके अलावा नीचे वाला जो है, जो ब्लैकिश पार्ट होगा, वो मिलेगी सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे वाली लेयर, उसके नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लेयर में देखना. तो वी कैन कंपेयर विद दैट and you can see that type of soil profile in the construction side also, है ना. या अपन क्या करें, अगर हमारे कोर्टयार्ड में ऐसा कच्ची ज़मीन है तो उसमें एक गड्ढा खोद के अपन उसको कुछ गहराई तक खोद के और उसमें डिफरेंट लेयर देखने की अपन कोशिश करें. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर अपन जाके देखते हैं तो फाउंडेशन फॉर द ना होम्स हाउसेज की जो फाउंडेशन करते हैं लोग, बिल्डिंग्स की जो फाउंडेशन के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें ये अलग अलग लेयर है मिट्टी की, वो हमें इजीली देखने को मिल जाती है. सो दैट वी कैन identify easily different layer of the soil and we can identify their difference also. This is about the soil profile. Got it? I hope you understand about the soil profile. Got it? Now types of soil. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है types of soil. soil के कितने टाइप होते हैं और टाइप्स किसके अकॉर्डिंग होते हैं. टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ soil. ओके, 3 टाइप्स आर देयर. पहले मैं टाइप्स बता देती हूँ. एक तो हमारी होती है सैंडी सोयल. कौन सी सोयल? सैंडी सोयल. दूसरा हम बात करते हैं लोमी, कर लो पहले, LOAMY, लोमी सोयल. एंड थर्ड वन इज अ क्ले सोयल या क्लेई सोयल अपन इसको बोल सकते हैं. तो ये अपनी हो गई 3 टाइप की सोयल. How they are classified? They are classified according to the texture of the soil particle. Okay, उनके साइज की जो है, साइज और टेक्सचर उसको फील करके, उसके पार्टिकल्स की साइज देख के, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, सोयल के टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, तो ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं इसकी सोयल के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. और यू कैन से दे आर डिफ्रेंशिएट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल का प्रोपोर्शन क्या है ना, प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की साइज, उनका टेक्सचर, है ना, ये उसका कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सोयल. अब इसमें हम देखते हैं 3 टाइप्स की सोयल है. कौन कौन सी? सैंडी सोयल, SANDY, सैंडी सोयल. Second one is a loamy soil and third one is a clay soil. Now I am going to talk about the sandy soil. अब हम sandy soil की बात करते हैं. Sandy soil में क्या होता है बच्चों, ये जो soil होती है, it contains greater proportion of the particle. इसमें जो particle का size होता है, particle का size जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है ना, greater होता है, ग्रेटर देन द अदर. मतलब अदर से कंपेयर करके बता रहे हैं, तो इनमें पार्टिकल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी. इसमें पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं. सेकंड पॉइंट, अगर इसको अपन बताना चाहे इसकी प्रॉपर्टी, तो बता सकते हैं द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर एरेटेड. इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होगा, पार्टिकल्स का साइज अगर बड़ा है, सो दे गेट द स्पेस बिटवीन देम. अब देखो इसके अंदर अगर मैं पार्टिकल के साइज देखें तो इसके बीच में क्या हो गया, ये स्पेस आ गया इनके बीच में, है ना. सो दे हैव द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेस दे ट्रैप द एयर इनसाइड इट.
तो एरिटेटेड पार्ट हो गया, और ऑब्वियसली द एयर कैन ट्रैप इनसाइड इट. When we put the water in it, they absorb the water. Air comes out from the soil and the water absorbed by the soil particle. वो जो water का हो वो easily absorb कर लेगा अंदर, और वो अंदर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, वो अंदर जाता जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये ऊपर से ड्राई होती जाएगी. Got it? So you can say it is aerated एंड रादर ड्राई ऑल्सो. एरिटेड होती है लेकिन ये ड्राई भी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज बड़ी होने से एयर गैप होंगे. एयर गैप होने की वजह से उसमें पानी है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा तो वो नीचे स्पेस मिलता जाएगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा, तो ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाएगी, इसकी ड्राई हो जाएगी. दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ द विच सॉइल, सैंडी सॉइल. सो वी हैव डन द सैंडी सॉइल. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लोमी सॉइल. अब हम बात करते हैं, चलो लोमी सॉइल हम बाद में करते हैं, क्योंकि लोमी सॉइल जो है दोनों का बीच का पार्ट है ना. इसकी प्रॉपर्टी होती है दोनों से, वो कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में मिलती हैं तो वो दोनों से रिलेट करती हैं. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्ले सॉइल. द क्ले सॉइल द टाइप ऑफ सॉइल विच हैव द स्मॉलर पार्टिकल्स इन इट, है ना. इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स की जो साइज है ना वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, और छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से दे आर टाइटली पैक्ड. ओके, क्लोजर दे आर कम क्लोजर, बहुत पास में होते हैं पार्टिकल, और ऑब्वियसली पास में पार्टिकल होंगे, सो दे डू नॉट हैव सो स्पेस बिटवीन देम. मान लो ये पार्टिकल बिल्कुल ही पास में है, बिल्कुल पास में है, तो गैप कहाँ आने दिया इन्होंने, ये तो सारा भरते जा रहे हैं गैप्स को. सो दे हाउ you can say as compared to the loamy soil, they have so less space between them, less space between the particle. अब पार्टिकल के बीच में स्पेस ही कम है, सो दे डू नॉट कंटेन द मोर एयर इनसाइड इट एंड दे डू नॉट absorb the more water, so they have the water holding capacity. मान लो ये लेयर है और ये सोयल है, तो इसके ऊपर पानी अगर जाएगा तो ये इतना जगह नहीं है इसमें ऑब्जॉर्व करने की, तो इसमें वाटर कहाँ रह जाएगा, अपर लेयर पे ही रह जाएगा, और अपर लेयर पे रहने की वजह से कैसे रहेगी, गीली रहेगी, वेट रहेगी. सो इट हैव द वाटर होल्डिंग, यानी कि वाटर इसमें होल्ड रह जाता है, किसमें, क्ले सॉइल के अंदर. तो उसमें तो वाटर सारा अब्जॉर्व हो जाता है, वो ड्राई हो जाती है. क्ले सॉइल में क्या होता है, वो ऊपर ही होल्ड हो जाता है उसके अंदर. तो एक तरह से ये एक दूसरे के लगभग अपोजिट है पार्टिकल्स का साइज हम बात करें तो अपन ये कह सकते हैं द पार्टिकल इन दिस टाइप ऑफ सोयल आर टाइटली पैक्ड एंड दे कैन होल्ड वाटर मोर देन द लोमी सोयल. ये लोमी सोयल से ज़्यादा वाटर को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. गॉट इट? दिस इज अबाउट द क्ले सोयल. ये हो गया हमारा क्ले सोयल. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज द लोमी सोयल. हम बात कर रहे हैं लोमी सोयल की. लोमी सोयल इज रिलेटेड टू बोथ ऑफ द सोयल्स. ये दोनों सोयल के बीच के से इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द loamy soil and clayey soil, because the particle size are as big as loamy soil and they are as small as the clayey soil. They are mixture 50-50% of both of the. So दोनों का कितना है, 50-50% है इसमें. तो particles छोटे बड़े दोनों हैं. Because of that both of the property they can absorb a little bit water inside. They can hold some water on the upper layer also. So that type of soil is useful for the growth of the plant. सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होगी वो प्लांट्स ग्रोथ के लिए वो कौन सी सोयल होगी, ये होगी ज़्यादा प्लांट्स के लिए. तो ये है हमारा, हम बात करते हैं किसकी, लोमी सोयल की. तो इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम रीड करना चाहें तो हम बता सकते हैं इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले पार्टिकल. ये सैंड और क्ले पार्टिकल का क्या होता है, मिक्सचर होता है. सेकेंड थिंग इट हैज़ ह्यूमस इन इट. इसके अंदर जो होती है, इस पार्टिकल के अंदर ह्यूमस भी रहती है, क्योंकि 50% ये भी है तो ह्यूमस भी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि उसमें लोमी सॉइल में भी क्या था, ह्यूमस पार्टिकल्स थे, तो वो भी क्या थी, फर्टाइल थी. इट हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जितना वाटर क्रॉप्स को या कह सकते हैं प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होती है. कुछ अब्जॉर्व करता है, कुछ वो होल्ड करता है, सो दैट दे आर बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल हो गई, अपन बोल सकते हैं, लेयर. सो दीज ऑल आर द थ्री लेयर ऑफ द, ये थ्री टाइप्स ऑफ द soil that are the loamy soil. Second is the first one is the sandy soil, then loamy soil and clay soil.
लोमी सॉइल और क्ले सॉइल की इंटरमीडिएट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? दैट इज द लोमी सॉइल. गॉट इट? I hope you understand the two topics in which we have studied about the first in a we studied about the soil profile. अच्छा, एक हमने देखा था it is a mixture of small rock particles mixed with the soil. ये small rock particles हैं, ये soil में mix कैसे हो जाते हैं? They mixes into the soil by the weathering of rocks. Weathering of rocks क्या होती है? Rocks आपको पता है, rock particles जो होंगी, चट्टानें जो होती हैं, obviously बहुत सारी रॉक्स हैं और उन पे क्या होता है? क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कहाँ तक पहुँच गया? टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, है ना, नियर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी. गर्म होने से दे एक्सपेंड. क्या होती हैं? दे एक्सपेंड. क्या होंगी? एक्सपेंड होंगी, फैलेंगी. ओके. एंड फिर इन द विंटर्स द टेम्परेचर गोज डाउन. और कई जगह तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला जाता है कि टेम्परेचर अपन ये मान के चले कि टेम्परेचर है 6-7 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए. दे कम इन कॉन्ट्रैक्ट. देन जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड दे कम इन कॉन्ट्रैक्ट. तो ये बार बार एक्सपेंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होने से इनके बीच में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं. क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं. अब जब क्रैक्स आ गए तो वो अपना स्पेस छोड़ देते हैं, लूज हो जाते हैं. और फिर जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं या बहुत तेज बारिश आती है तो तुमने देखा होगा एक ही जगह पे तेज स्पीड से वाटर आता है या गिरता है तो क्या होगा? वहाँ के पार्टिकल को उखाड़ देता है. ये पार्टिकल्स वहाँ से हट जाते हैं एंड देन पार्टिकल्स कम डाउन विद द वाटर in a form of small particles and mixes at the लोअर पार्ट ऑफ द वो कुछ पार्टिकल्स तो क्या होंगे? पानी जहाँ जाके रुकेगा माउस के साथ बहते बहते रिवर्स में, ओशंस में, वहाँ जाके कलेक्ट हो जाते हैं. और फाइन पार्टिकल उसके पास में ही बिल्कुल बारीक बारीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्ट बोलते हैं. सुना होगा तुमने. बिल्कुल फाइन पार्टिकल है ना, एकदम बिल्कुल बारीक बारीक सा ऐसे लगेगा छान के कुछ रखा हुआ है. तो इस तरह की मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, बाकी वो जो बह के चले जाते हैं पार्टिकल्स. तो इस तरह से जो सोयल मिक्स होती है, पार्टिकल्स मिक्स होते हैं और फिर उसमें रिमेन्स जो है वो गिर जाते हैं. धीरे धीरे वो डिकम्पोज होके उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और इससे क्या बन जाती है? ह्यूमस बन जाती है और डिफरेंट लेयर जो होती हैं वो बना ली जाती हैं सोयल की. So this process is known as the weathering of rocks. इसको weathering of rocks कहते हैं. The soil is prepared by the method that is known as the weathering of rocks, in which the rock particles are, because of the climatic condition and because of the climatic effect, the rock particles are come in contract and expansion and they have the crack inside it, and because of the strong wind, rain and any other climatic condition, the particles convert into small pieces and come down in a form of small rocky particles and silt and mixes with the soil. That is known as the weathering of rocks. इसको अपन क्या कह देते हैं? weathering of rocks बोलते हैं. So this is the method which we have done. Soil is formed by the breaking down of the rocks by the action of wind, water and climatic, you can say climate. climatic condition में तुम्हारा winter भी आ जाएगा, summer भी आ जाएगा, मतलब temperature का बढ़ना और घटना. This is known as the weathering and this process is known as weathering of rocks. I hope you understand both the topic. Students, I will provide the question for writing or you can say some definition which you have to do in your notebook. Dear students, watch the complete video. We have skipped the 8th chapter which we do later on. Today now we are going to study about the 9th chapter only. Okay, thank you.